sort of long-term desires. Okay. You can add some short term also because it's just my personal experience. I had added one, so that's completed. It was very small, but that gives a kind of like enthusiasm to go ahead little bit more. So that's why we can have both short and long term. Definitely. So good morning and welcome. It's so wonderful that you people are discussing as a buddy, supporting each other and discussing the goals and the dreams of each other. So Good morning, ma'am. good morning. Thank Good you. morning. Yeah. So आपका कौन सा वाला छोटा वाला ड्रीम पूरा हुआ दीपक? एक्चुअली मैम मेरा क्या होता है, मैं किसी को पैसे देता हूँ, पैसा मांगता नहीं। मुझे लगता है यार उसके पास जब होगा वो दे देगा। क्योंकि मुझे लगता है उसके पास कुछ मुसीबत होगी इसलिए नहीं दे रहा होगा। तो मैंने जस्ट कुछ नहीं, एक बार ऐसे ही गया था इधर, अभी तो डीमार्ट का सिस्टम है यहाँ पे, अभी थाने में हूँ। तो वहाँ पे मैंने एक हमारे साथ में रहते हैं उनके लिए परचेजिंग की, उनके पास पैसे नहीं थे, मैंने दे दिया, अपने कार्ड से पेमेंट कर दिया। तो मैंने वापस नहीं मांगा, वो बोले चल के घर पे देता हूँ, रूम पे देता हूँ। तो ऐसे लगभग 8-10 दिन हो गए। तो उन्होंने परसों ही शाम को वो अमाउंट मुझे ट्रांसफर किया। तो इसके लिए इसको भी मैंने अपने उसमें विश लिस्ट में रखा था कि चलो मैं मांगता नहीं हूँ तो देखता हूँ ये कब होता है, ग्रेटिट्यूड देता हूँ कि वो पहले से कि मान लिया कि वो दे दिए हैं मुझे, मैं उनको थैंक्स कर रहा हूँ मन ही मन में। तो ये मुझे अच्छा लगा। आपकी आवाज नहीं आ रही है। So great, because अगर आप छोटे छोटे अपने goals जो अपने dreams लिखते हो और वो fulfill हो जाते हैं, then it gives you confidence that it works. Yes, ma'am. Yeah, and then you start looking forward to the next one and the next one and the next one. Yeah, Yes, so yes. that's good because हम लोग जब check पे लिखते हैं, तो first time we write a smaller amount so that and you want to buy something, for that you write the amount, so that when that gets fulfilled, it gives you confidence that you have done it. Yes, ma'am. Yeah, so that was the whole thing. Yeah, good, great. Good morning, Bijal. Good morning, Rahul. Good morning, all. Good morning. Good morning. Yeah, I really want to acknowledge Rahul because he's the first one to complete his assignments every single day. And Thank you, ma'am. And fills the MIS. Yeah. Yeah, ma'am. Thank you. Yeah, and though Puran has already written in the group, so I just also wanted to speak to you about the MIS. So this was the first time we were trying to work out something new. We wanted to add something new, like I've started the buddy structure, and then we had started the MIS. So initially also it took some time because the Puran has been working on it, and so he started it, he actually designed it, and it started working well. But then the cumulative part, which we were supposed to share every weekend with you, that has not been possible for so long. And I was actually, थोड़ा उसको I was pulling him कि ये क्या हो रहा है, every time we say Sunday को करेंगे and every time you're not able to do it, like it's a loss of face for me. How do I face my participants? तो तुम तो आते नहीं हो और मेरे को बहुत अजीब सा लगता है every time I go and say कि इस बार भी नहीं हुआ है. So it so happened earlier on when he was traveling, तो his laptop crashed. तो वो अभी तक repair होके नहीं आया है. And the person जो उसका बैकएंड पे काम कर रहा था वो भी घर गया हुआ, तो वो छुट्टी दिवा होली के चक्कर में वो भी गया हुआ, तो वो सारा काम रुके पड़े हैं उसके, तो उसमें ये वाला भी एक काम रुका हुआ है. So but hopefully before the session ends we will share it with you so that you know how you fared throughout the journey, and from there on you can decide कि आपको कहाँ किस एरिया में आपको काम करना है, या आपने किस चीज में आपने स्लिप्स किए हैं, आपने सेशन मिस किए हैं, या आपने असाइनमेंट नहीं किए हैं, और नहीं किए हैं तो क्यों नहीं किए हैं ना. So you can actually start looking at it कि what stopped you, what came in the way. So we are more interested in that कि आपके जो भी barriers है ना, you overcome that, ताकि आप अपनी लाइफ में, because see अगर
सेशन में आकर आप कर रहे हो तो वेरी गुड, और अगर सेशन में होते हुए भी नहीं कर रहे हो, कुछ तो है ना जो रोक रहा है, और जो रोक रहा है वो आपको बहुत जगह पे रोक रहा है, एक ही जगह पे नहीं रोकता। इट्स ऑल प्रिवेसिव। जो भी आपका बैरियर होता है वो हर लाइफ के हर एरिया में आपको रोक रहा होता है। सो व्हेन यू स्टार्ट लुकिंग एट द ट्रेंड, कि आपका ट्रेंड कैसा रहा, आपका ग्राफ कैसे गया है, सो यू कैन एक्चुअली आइडेंटिफाई कि इस दिन जब मैंने ये नहीं किया तो उस दिन क्या हुआ था, क्या आया था, किसने रोका था मुझे, या मेरा अपना इंटरनल कुछ था, मेरा मन नहीं कर रहा था तो मैं अपने मन के साथ चल दिया, या फिर कोई ऐसा काम आ गया जिसकी वजह से मैं नहीं कर पाया। तो हम लोग जब लैंडमार्क में थे ना, तो हम लोग क्या कहते थे कि जब भी हम कोई रीजन देते हैं ना कहीं चॉइस हमारी होती है कि हमने नहीं करना है, क्योंकि हमारा जो अंदर की चिक चिक चल रही होती है वो कहती छोड़ना यार, आज छोड़ दे। सो आज क्या हुआ, कल रात को मेरे फ्रेंड्स आए हुए थे, पूरन आया हुआ था और एक और मेरी फ्रेंड आई हुई थी। हम लोग रात को 1 बजे तक नाच रहे थे। मैं जिंदगी में पहली बार नाची थी कल। और उसने होली के गाने लगा के हम लोग रात को बहुत देर तक नाच रहे थे। उसके बाद बैठ के हम लोग गप्पे मार रहे थे। हम लोग 1 बजे सोए। और दे वांटेड टू गो टू इस्कॉन टेम्पल फॉर द मॉर्निंग आरती। एंड वी वर आल्सो प्लानिंग टू गो, कि इकट्ठे चलेंगे वहां, आरती के बाद वहीं से लाइव होंगे एंड वहीं से सेशन करेंगे। बट हुआ ये कि नींद थोड़ा देर से खुली, तो सबको नहाना था, सबको तैयार होना था। तो आई सेड सिंस यू पीपल वांटेड टू गो एंड यू गो, आई वी विल स्टे एट होम एंड आई विल डू द सेशन फ्रॉम होम ओनली। तो उठे हुए हम भी 3 बजे के आए। 2 घंटे सोए। बट कहीं ना कहीं अगर ये मेरी कमिटमेंट नहीं होती कि मुझे ये सेशन पे आना है और मुझे सेशन को लीड करना है, मैं भी सोचती छोड़ो यार, पूरी रात नहीं सोई हूँ, सो जाती हूँ। ऐसे ही अगर आपकी लाइफ में आपको कोई चीज रोक देती है, तो दैट मींस देयर इज सम कमिटमेंट व्हिच इज लैकिंग। आई एम सॉरी। और दूसरी बात क्या होती है, कमिटमेंट की बात तो छोड़ो, आप अपने शब्द का आदर नहीं करते हो। आपके लिए आपका शब्द बहुत सस्ता है, चीप है। आप जिसको मर्जी प्रोमिसेस करते रहते हो और उसके बाद फुलफिल नहीं करते। आप में से कितने लोग ये करते हैं, यस और नो? कि बहुत लोगों को बोल देते हैं मैं ये करूंगा तेरे लिए, या मैं तेरे को मिलूंगा, या मैं तेरे को फोन करूंगा, छोटी छोटी बातें। कितने लोग हैं जो ये करते हैं? चैट बॉक्स में लिख दो यार, बोलना नहीं चाहते तो चैट बॉक्स में लिख दो। हाउ मेनी ऑफ यू डू दिस? नॉट रेगुलरली बट वंस इन अ व्हाइल करते हो? कोई भी नहीं करता। आई इंटेंशनली डोंट। तो नहीं होते, लेकिन सर हो जाते हैं, सर्कमस्टेंसेस ऐसी आ जाती हैं, कुछ हाँ, हो हाँ। तो जाता है ये जो हम कहते हैं ना, वो कुछ हो जाता है ऐसा। तो जब आप अनस्टॉपेबल होते हो ना, तो आपको कोई चीज नहीं रोकती है। या या अगर और कहीं पे भी जो चीज आपको रोक रही है ना, वो आपके दिमाग ने आपको कहीं ना कहीं बोला छोड़ यार, आज रहने दे, कल कर लेना, एंड यू वेंट विद दैट। whenever you are giving power to your internal chatter, जो आपको अपनी दिशा से भ्रमित करता है, आपके गोल से आपको डायरेक्शन से दूसरी तरफ ले जाता है, और आप उसके साथ चल देते हो ना, वहीं पे आपकी पावर खत्म होती है। यू आर लूजिंग योर पावर देयर। और उसी मोमेंट पे अगर आप उसको ओवरकम करके अपने वर्ड को, या आपने जो प्रॉमिस किया, ये जो आपकी जो कमिटमेंट है, उसके लिए आप चल देते हो ना, डिस्पाइट ऑल ऑड्स, देन यू बिकम सो पावरफुल। और उसके बाद जब इस चीज को आप प्रैक्टिस करते जाते हो, दिन दिन पर दिन, दिन पर दिन, दिन पर दिन, यू बिकम सो पावरफुल कि आप बोलते हो और चीजें होनी शुरू हो जाती है। फिर वो यूनिवर्स वो चीजें करने शुरू हो जाता है आपके लिए। या अब मुझे बताएं, आप गांधी जी थे, गांधी जी में क्या ऐसी एक चीज थी? गांधी जी में वही एक चीज थी कि वो जो कहते थे वो करते थे। और इमेजिन करो, सर्दियों में वो जब लंदन गए थे, इमेजिन वहां के लोग ओवरकोट पहन रहे थे और वो एक धोती में और एक ऊपर अपना जो अंगोछा लपेट के बैठे हुए थे।
उनको ठंड नहीं लगी. Why? Because when you say something, it happens. If he says कि मेरे को मुझे इस ठंड से कुछ असर नहीं होने वाला, तो ठंड उसके ऊपर असर कर ही नहीं सकती है. वो भी आपकी वर्ड का ऑनर करना शुरू हो जाती है. इट इज सो डैम पावरफुल. तो उसका एक सिंपल सा तरीका बता देती हूँ, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो. बोलो चाहिए? से यस और नो? Yes, ma'am, very much. Yes. ओके. तो आपके जितने भी बडीज हैं, आप अगर ये सेशन के बाद भी उनको बडीज बना के रखना चाहते हो, या किसी और को अपना बडी बनाना चाहते हो, या अपनी फैमिली मेंबर में से किसी के साथ ये गेम खेलना शुरू कर सकते हो कि आप रोज सुबह 3 चीजें लिखोगे कि मुझे ये आज 3 चीजें करनी है. चाहे वो किसी को कॉल करनी है, या आपने वॉक पे जाना है, या आपने कोई भी काम करना है. कोई भी चीज, मतलब छोटी से छोटी चीज हो सकती है कोई, मतलब बहुत बड़ी बड़ी चीजें मत लिखना. इट कुड बी सिंपल थिंग कि मैं सुबह 5 बजे उठूंगा, या मैं वॉक पे जाऊंगा, या आज मैं इतने ग्लास पानी पीऊंगा. इट कुड बी एज सिंपल एज दैट. और आपने वो उस बंदे के साथ शेयर करना है कि आज मैं ये 3 चीज करूंगा. और आपको रात को सोने से पहले देखना है कि आपने वो तीनों चीजें करी है कि नहीं करी है. उसका एक टाइम, वो तो कट ऑफ टाइम रख लो. जैसे हमने MIS का 10 बजे रखा है, आप 9 बजे रख लो, या 8 बजे रख लो कि मैं 8 बजे चेक करूंगा कि मैंने वो अपने 3 चीजें करी कि नहीं. हो सकता है आपके दिमाग से निकल ही गया होगा मेरे को ये 3 चीजें करनी थी. आदत नहीं है ना, तो बीच में आप रिविजिट कर सकते हो कि मैंने आज क्या लिखा था कि मुझे आज क्या करना है. एंड वो 3 चीजें आपने अगर 8 बजे तक नहीं करी हैं, और उसमें ऐसी कोई चीज है जो आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप सोने से पहले कर सकते हो, तो प्लीज डू इट. अगर आपको 5 बजे उठना था तो ऑब्वियसली यू कांट डू इट. अगर आपको पानी पीना था तो ये आप पी सकते हो, या आपको किसी को कॉल करनी थी तो आप कर सकते हो. और अगर आप कॉल नहीं कर सके किसी को, एटलीस्ट यू कैन राइट टू दैट पर्सन, आई वांटेड. उसको नहीं पता आपने उसको फोन करना था, बट आपको पता है. सो यू कैन राइट टू दैट पर्सन, आई वांटेड टू कॉल यू टुडे बट समहाउ कुड नॉट मेक इट, और या जो भी कुछ, आई विल डेफिनेटली कॉल यू टुमारो एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. और वो मैसेज डाल दो उसको, ताकि वो आपके लिए कंप्लीट हो जाए वो चीज कि आपने जो कहा उसको आपने कहीं ना कहीं उसको कंप्लीट किया है. एंड शेयर दैट विद योर बडी. और ये बडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या जिसके साथ आप शेयर कर रहे हो, कि वो आपसे पूछे आज की 3 चीजें हुई क्या तेरी. जस्ट प्रैक्टिस इट फॉर 1 month एंड देन सी हाउ इट विल स्टार्ट ट्रांसफॉर्मिंग योर लाइफ. कोई छोटी चीजें लेना, बड़ी मत लेना टू बिगिन विद. Are you game for it? Yes, ma'am. Very. Okay. Who all are going to play this game? Me, Rahul. Yes. Okay. Who else? I'm in. Okay, Anji. Prakhar. Okay. Bijal. Yes. Okay. Yes. Good morning. Yes. Good morning, Jyoti. Yes. Okay. Great. तो अभी आपके पास स्ट्रक्चर है, आप चाहो तो ग्रुप में भी लिख सकते हो. वहां पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितने गुना हो जाएगी सोचो. इतने सारे लोग हैं जो आपसे पूछ सकते हैं क्या हुआ, तुमने अपनी तीनों चीजें करी कि नहीं करी. सो इफ यू वांट दैट आल्सो यू कैन डू. आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी लिख सकते हो, तो वहां आपको और भी सपोर्ट मिल सकता है. या सो स्टार्ट प्लेइंग दैट. या ओके, एनीबॉडी वांट्स टू शेयर एनीथिंग, बिकॉज़ उससे पहले हम फिर आज का चैप्टर के बारे में कुछ क्रिएट करते हैं. Yes, ma'am. Rahul. या राहुल, गुड मॉर्निंग. कि मतलब जब से अपना सेशन चालू हो गया, देन आई एम मतलब मॉर्निंग में मैं फर्स्ट हाफ से पहले मैं कर लेता हूँ मेरा असाइनमेंट, एंड देन द रेस्ट डे इट एक्ट्स एज अ लाइक मैजिकल डे ऑल टुगेदर. मतलब एक ही दिन, मतलब जो प्रैक्टिस करते वो वही चीज नहीं होती है. जैसा ये मैजिक चेक का वो होने लगा. मेरे 14 साल पहले का मेरा ये था, PPF अकाउंट था, वो मैच्योर होने का ये, मतलब एग्जैक्ट अमाउंट मैंने जो लिखा था वही अमाउंट, वो अमाउंट का चेक आना. सेकंड, आपने शेयर नहीं किया ये हमारे साथ. हाँ, आपको शेयर करना चाहिए था ना. जो भी मैजिक होते वो शेयर किया करो, छोटा हो बड़ा हो. या तो वो एक आना चालू हो गया है. बाद में जो मैजिक फुट स्टेप का वो मैजिक, मतलब एक ने वो 1000 चीजें चालू हो गई. एंड देन लाइक हम लोग जो बोलते हैं ना कि बाबा
we became as a money magnet. तो वो तो Yeah. सच में होना चालू ही हो गया. And then each and every bill, whatever I get, पहले कैसे था, हम लोग कैसे कदर नहीं करते थे. बिल लिखा कि किधर गया मालूम नहीं. मैं वो बिल लेके आता हूँ, उस पर लिखता हूँ थैंक यू पेड करके, मेरे पास रखता हूँ. और एक अलग सोचता हूँ, मैंने अभी जो डाला है, जो मैंने स्पेंड किया है, उससे 7 गुना मेरे को ज्यादा मिलेगा. तो वो एक, तो हर एक बिल लाने का, ग्रेटिट्यूड देने का, वो एक चालू किया. हर एक चीज में थैंक यू बोलने का, कुछ पानी पियो, खाओ, वही वही आदत है मैंने मेरी जो बेटी है उसको भी लगा दी है. जो मेरे दादी से सीखा था, मम्मी से सीखा था, वो मैंने कैरी किया और मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ. तो वही एक चीज में कर रहा हूँ, मतलब उसमें फॉलो. वेरी गुड, वेरी गुड. एंड जब आप ये बोल रहे हो ना कि आप जिस प्रैक्टिस को कर रहे हो, उस प्रैक्टिस के अलावा बहुत कुछ हो रहा है. यस तो हाँ, सो जब हम ग्रैटिट्यूड की बात कर रहे हैं ना, तो आप जितना ग्रैटिट्यूड देते जाओगे, क्योंकि हो सकता है आप सिर्फ वही वाली प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो जो उस दिन की है, आप उसके साथ काउंट दी ब्लेसिंग्स भी कर रहे हो, आप मैजिक रॉक भी कर रहे हो सकता है आपने जैसे मनी मैग्नेट वाली बात बोली, तो हो सकता है आप रोज मनी मैग्नेट के ऊपर भी काम कर रहे हो सकता है आप फुटस्टेप्स भी एवरीडे कर रहे हो, आप खाते टाइम पीते टाइम ग्रैटिट्यूड दे रहे हो, तो आप अपने दिन को ग्रैटिट्यूड से भरते जा रहे हो. तो जितना ग्रैटिट्यूड आप अपनी लाइफ में लेते आओगे, अगर आप पूरा दिन सिर्फ ग्रैटिट्यूड में रह रहे हो, तो क्या होगा बताओ. पॉजिटिविटी. हाँ, एक पॉजिटिव. ऐसी और चीजें आपकी जिंदगी में आती चली जाएंगी जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो. लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ऐसे ही काम होता है ना. तो जितना ग्रेटिट्यूड को बढ़ाते जाओगे, उतना ही जिंदगी में आपकी मनचाही चीजें आती चली जाएंगी, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो. तो ये डिपेंड करता है आपका लेवल ऑफ ग्रेटिट्यूड पे, कि आप कितना ग्रेटिट्यूड कर रहे हो. अगर आप सिर्फ अपने प्रैक्टिस के हिसाब से कर रहे हो, ओके भाई 10 वो लिखने हैं मुझे, वो लिख लिए मैंने, और उसके बाद आज की प्रैक्टिस क्या है, ओके मुझे ये बैठ के सोचना, सोच लिया, उसके बाद बात आई गई होगी, उससे भी आपको फायदा होगा, जरूर होगा. बट अगर आप हर चीज में ग्रेटिट्यूड ढूंढना शुरू कर देते हो, तो आपकी लाइफ उसी क्षण से, उसी मोमेंट से मैजिकल हो जाती है. That's true, ma'am. Very true. So thank you so much for sharing that, Rahul. Thank you very much for Yeah. everything. Thank you. Anybody else wants to share? और किसी को कुछ शेयर करना है? Okay, so who's going to read today's chapter? Me, Rahul. Okay, Rahul, one second. Yeah, just read the heading and then we will talk about it. Day 23, the magical air that you breathe. Okay, तो अभी ये बात तो हम सबको पता है कि हम ब्रीथ करते हैं एयर, उसी से हम जिंदा रहते हैं. एक चीज होती है किसी चीज के बारे में जानना, जो हमें किताबें बताती हैं ना, कि सूरज हमें रोशनी देता है ना, हवा से हम जिंदा रहते हैं, पर हवा दिखती नहीं है ना हमें. सूरज की रोशनी तो फिर महसूस होती, दिखती है, पर हवा हमें दिखती नहीं है. तो ये अनुभव की बातें हैं, ये एक्सपीरियंस की बातें हैं. आप अगर हवा में खड़े होते हो और बहुत अच्छी हवा चल रही होती है, तो आपको हवा दिख थोड़ी रही होती है, बट आप उसको महसूस करते हो, क्या आपके चेहरे को छू के जा रही है, यू नो, आपको ठंडा सा एहसास दे रही है, या जब गर्मियों में लू चलती है तो आपको गर्मी का एहसास देती है, यू नो. तो ये एक एहसास की चीज है, और जितना आप इस चीज को, एहसास को महसूस करोगे, उतना ही आप इस चीज के लिए ग्रेटफुल हो सकते हो. क्यों? बिकॉज ये एहसास और फीलिंग्स की दुनिया है, राइट. सो एयर इज समथिंग विच यू एक्सपीरियंस, जिसको आप महसूस करते हो, जिसको आप फील करते हो. आप में से कितने लोग हाईवे पे, आज नहीं बचपन में, कॉलेज टाइम में लॉन्ग ड्राइव्स पे गए हैं, खिड़कियां खोल के अपनी कार की या बाइक पे, कितने लोग गए हैं? Yes, ma'am, गए हैं. हाँ, हम भी गए. I think almost everybody must have experienced that Yes. sometime or the other, कि आप कहीं जा रहे हो और बड़ी अच्छी हवा चल रही है, and you open the windows and you just enjoy the breeze, है ना, कैसे वो बालों को उड़ा रही होती है और आपको कितना अच्छा लग रहा होता है. लाइक मुझे ना लंदन में ना जब मैं जब भी गई हूँ,
तो मुझे वहाँ वॉक करना बड़ा अच्छा लगता है। आई लव वॉकिंग इन लंदन। व्हाई? इतनी ठंडी ठंडी हवा होती है ना वहाँ पे, वो आपके चेहरे को इतनी फ्रेशनेस देती है, वो छूती हुई जाती है ना आपके चेहरे को, ऐसे लगता है जैसे ना मतलब कहीं से कुछ बहुत फ्रेशनेस आ गई एकदम से। आप चलते जाते हो आपको जरा थकान महसूस नहीं होती। एंड आई रिमेम्बर हम लोग चेडर चेडर गॉज करके एक जगह है, वहां पर मैं गई, बहुत साल पहले की बात है, आई थिंक 1997 की बात है ये। मुझे आज भी उस एक्सपीरियंस का एहसास है। तो वहां पे एक छोटा सा हिलॉक था जिसपे हम लोग सारे कजन्स, हम लोग, मेरी कजन्स रहती हैं वहां पे, मेरी बुआ रहती हैं। सो आई वाज विजिटिंग देम, सो दे टुक मी देयर, और हम लोग क्लाइंब करके ऊपर जा रहे थे। अब वो क्लाइंब कर रहे थे तो थक भी रहे थे, और जैसे ही हम थकते, थोड़ा थोड़ा सा थकते थे, कहीं पर भी हम 2 मिनट के लिए रुकते थे, ऐसे फ्रेश हो जाते थे, इतनी एनर्जी आ जाती थी, फिर दोबारा से चढ़ना शुरू हो जाते थे। और जब हम बिल्कुल टॉप पे पहुंच गए जहां पर हमने बैठना था जाकर, इट वाज जस्ट अ छोटा सा प्लेटो सा था जिसपे हम जाके बैठ गए। वाओ! आई मीन मुझे आज भी वो सनसनाहट महसूस होती है जब मैं उस चीज को याद करती हूँ। 1997 की बात कर रही हूँ मैं। एंड यू नो हम लोग सारे बैठे हुए वहां पे, और हवा चल रही है इतनी तेज, और ऐसे सबके ना कपड़े उड़ रहे हैं, जो भी पहने हुए हैं, फट 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 करके कपड़े उड़ रहे हैं। एंड आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव एक्सपीरियंस, जैसे बहुत तेज हवा चल रही हो तो आपके कपड़े भी आवाज करना शुरू हो जाता है ना, जैसे जोर जोर से आवाज आने लग जाती है उनकी, फट 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 करके। एंड बाल सबके उड़ रहे हैं, एंड चेहरे एकदम सबके जैसे गूज़बम्प्स नहीं हो जाते हैं, ऐसे सबके बाजुओं पे गूज़बम्प्स हो रहे हैं। But we were enjoying it so much. So it was such a good experience. It was only experience of air. हम देख तो नहीं पा रहे थे उसको. So air is something which you experience. It is something which is magical, which you breathe. जो आपके आसपास हमेशा से है, पर आप उसको मतलब आप उसको महसूस कर सकते हो, देख नहीं सकते. Now I want you to look at the picture. What is this picture showing? Tell me, somebody unmute and speak. पिक्चर पे क्या दिख रहा है आपको? Somebody unmute and speak, please. Is anybody speaking? Because I can't hear anyone. I think this is a hill, and on that trees there, and sparkles are there, and the air is there which we can't see. Yeah, magical. Grasses, yeah. Okay, और नीचे थोड़ी सी ग्रास भी है ना? Grass, yeah. Okay. तो अब मुझे ये The बताएं, peace, yeah. हाँ, अब मुझे ये बताएं, इन सब का क्या मतलब है? क्या समझ आ रहा है इससे आपको? Feel the magic in the air. There is so much of life. Yeah. There is so much of life. There's so much of. Moita, I couldn't hear you. I said that there is so much of life, unseen, it's happening. There is wind, and there is grass growing silently. Yeah. I have a black and white in this picture. Okay, fine, thank you. But मुझे एक बात बताएं, इन सब चीजों में लाइफ है ना? This is what you said. There's so much of life around. अब ये लाइफ के लिए जो 5 तत्व होते हैं, उसमें से हम सबको मालूम है ना 5 तत्व कौन से होते हैं? सबको मालूम है? Yes, ma'am. Yes. Okay. So उन 5 तत्वों में से एक तत्व होती है हवा ना? Yes. तो वो एक हवा जो है वो प्राण शक्ति है, वो हम सबकी प्राण शक्ति है, वो इन पेड़ों की भी प्राण शक्ति है और इस घास की भी प्राण शक्ति है ना? Yes. That is one part of it. The other thing is, हम सब जो air breathe करते हैं, that is a certain kind of a gas, right? जैसे ब्रह्मांड में जो हवा है, उसमें बहुत तरह की गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, बहुत सारी है ना उसमें, बट उसमें एक पर्टिकुलर तरह की जो वो है हवा है जो हमारे लिए है, which is called oxygen, right? वो उस ब्रह्मांड ने हमारे लिए abundance में दी है, और उसका निरंतर हमें वो हम प्रवाह चलता रहे, वो निरंतर हमें मिलती रहे,
उसके लिए उसने क्या किया है, उसने पेड़ लगाए, क्योंकि ये पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं और जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो उनको एब्जॉर्ब करते हैं. Yes or no? Say yes or no. Yes, 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 ma'am. sir. Yes. Yeah. So the tree is actually showing the importance of tree with air for us. अगर ये trees नहीं हो तो air जो है वो ऑक्सीजन वाली एयर कम हो जाएगी, और ऑक्सीजन वाली एयर कम हो जाएगी तो क्या होगा आप सब लोग जानते हैं. दिल्ली में जब इतने सारे पेड़ काट दिए तो एयर क्वालिटी का क्या हाल हुआ है. And now they are talking about planting more trees. Why? Because they realized it. If without trees, you can't get good quality of oxygen, which is actually so necessary and vital for the human life. So that is why magical air. Because it is a magic which is created by the universe for us. And the trees are also like magic. Because in trees की वजह से हमें ऑक्सीजन मिल रहा है. So I want each one of you to do one thing today. जैसे मैंने बोला था ना मैं ट्री को हग करती हूँ. I want कि आप सब लोग जाके आज एक ट्री को हग करोगे एंड उसको ग्रेटिट्यूड दे के आओगे कि आपकी वजह से हमें ऑक्सीजन मिलती है, हम जिसको ब्रीथ करते हैं, जिसकी वजह से हम जिंदा हैं. So I want, this is your homework for today. This is over and above the practice we will have today, but I want you to do this today. Are you on for this? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yeah. So आप किसी भी एक पेड़ को, और जो भी पेड़ होगा ना आपका, वो आपको बुला लेगा. And just go and hug that tree and just say thank you, thank you, thank you 3 times to the tree. And what for? वो बोलना जरूरी है. Why? Because you are giving us oxygen, which is so important for us to survive. Okay, so let's read now. It is quite possible to leave your home for a walk in the early morning air and return a different person, beguiled, enchanted. Mary Ellen Chase, 1887 to 1973, educator and writer. Okay. I want everybody else to be on mute, please. Give me a moment. Yeah. I want you to read it again and read it slowly. Okay. It is quite possible to leave your home for a walk in the early morning air and return a different person, beguiled and enchanted. Mary Ellen Chase, 1887 to 1973, educator and writer. Okay, so just wanted to create something for you. मैंने आपसे दोबारा पढ़ने के लिए क्यों बोला और स्लो पढ़ने के लिए क्यों बोला. तो जब हम लैंडमार्क में थे तो हमें ना जो भी हमारे असाइनमेंट्स होते थे वो हमें सबसे पहले क्लास में हमारी बहुत कॉल्स होती थी. कभी 6 बजे सुबह हो रही है, कभी रात को 8 बजे भी हो रही है, पूरा दिन हमारी कॉल्स चलती रहती थी. हमारी इतनी रिगरस ट्रेनिंग होती थी. तो उसमें हमें बोला जाता था कि प्लीज जनरेट दिस. They never used to say read it. They used to say generate this for everybody. तो जब आप इस तरह से पढ़ते हो ना, it gets generated for everybody. Because एक word जो है ना, वो लोग जो भी सुन रहे हैं ना, उनके अंदर तक जाता है. So wherever there is something important, वहां पे मैं हमेशा बोलती हूँ कि please read this paragraph again and read it slow. That is why, because I want you to generate it for everybody. जब आप उसको जनरेट करते हो तो वो हर एक इंसान का जो भी सुन रहा है उसके लिए वो बहुत अच्छे से क्लियर होता है और वो अच्छे से उसके अंदर जाता है. एंड वन मोर थिंग आई वांट टू से टू ऑल ऑफ यू, प्लीज अभी जो ये वाले चैप्टर्स चल रहे हैं ये बहुत क्रिटिकल और बहुत इंपॉर्टेंट है. सो आई वांट ईच वन ऑफ यू टू सिट विद योर स्पाइन स्ट्रेट. डोंट स्लाउच, डोंट सिट ऑन अ बेड, डोंट lie down unless you are really critical. So I really want you to sit straight with your spine straight. Because अगर आप चाहते हो कि आप जो सुन रहे हो वो आपके अंदर तक जाए, ग्रहण हो, फोकस हो आप उसको सुनने में, तो प्लीज sit with your spine straight. Yeah. हाँ जी. So it says it's quite possible कि आप घर से बाहर निकले और आप जब वापस आए मॉर्निंग वॉक से, या आपने जब खुले एनवायरनमेंट में गए
और जब वापस आए, यू आर नॉट द सेम पर्सन, यू आर फीलिंग सो एन्चेंटेड। अब बहुत सारे लोग हैं जो वॉक पे जाते हैं अपने ईयरफोन्स लगाए और चलते जाते हैं, चलते जाते, ना इधर देखते हैं ना उधर देखते हैं, चिड़ियां चहचहा रही हैं, फूल नए निकले हैं आज, नए, मतलब कल जो नहीं थे वो आज नए फूल खिले हुए हैं, नहीं देखा, सिर्फ अपने उसमें धुन में चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। दे विल नॉट हैव दिस एक्सपीरियंस बिकॉज दे आर नॉट फोकस्ड ऑन इट। उनका फोकस तो वही उसी कान में जो चल रहा है उसी में है, या फिर दो लोग चल रहे हैं आपस में चुगलियां करते हुए चल रहे हैं, एक दूसरे की को बोल रहे हैं यार वो तो बस ऐसे ही है, गवर्नमेंट का तो बुरा हाल है, मतलब जस्ट लुक एट दिस, इकोनॉमी का क्या भट्टा बिठा दिया, एंड देन दे आर जस्ट टॉकिंग दैट एंड दे आर जस्ट वॉकिंग। डू यू थिंक दे विल फील दिस काइंड ऑफ एक्सपीरियंस? नो No. वेज, नो वेज। You will have this kind of experience only when you are one with nature, when you experience कि एक एक चीज आपके लिए किस तरह से यूनिवर्स ने कहां कहां रखी हुई है आपके लिए। अगर फूल हैं तो वो आपको कहीं ना कहीं खुशी दे रहे हैं, आपको उनके कलर्स, if you start looking at them, if there's a butterfly, look at the butterfly, look at the way it has been designed by the Almighty, कितने बारीकी से एक एक चीज बनी हुई है उसकी। And then when you start actually feeling wonderment in everything, you start enjoying everything, and हवा चल रही है, आप हवा को महसूस कर रहे हो। You know, I remember मेरे जो डॉक्टर साहब हैं, वो हमारे जो फिजिशियन है, फैमिली फिजिशियन, तो ही यूज्ड टू से दिस टू मी। कहते हैं, लोग कहते हैं ना मेडिटेशन कर, मेडिटेशन कर, आई जस्ट डू एयर, एयर का मेडिटेशन। सो ही सेड एयर का मेडिटेशन क्या करता हूँ, आई जस्ट सिट इन अ रूम एंड आई जस्ट स्टार्ट फीलिंग कि पंखे की हवा चल रही है या एसी की हवा जो चल रही है, ये मुझे कहाँ कहाँ टच कर रही है, मेरे बॉडी के कौन से पार्ट को टच कर रही है, इस वाले पोर्शन में टच करी है या अब इस तरफ को चली गई। कहता आई जस्ट फोकस ऑन एयर, हाउ ब्यूटीफुल इट इज। आई ट्राइड इट कपल ऑफ टाइम्स एंड इट फील्स सो गुड कि हमने तो कभी महसूस ही नहीं किया कि अच्छा पंखा चल रहा है कि पंखे की हवा कहाँ चल रही है। राइट नाउ मेरे कमरे में पंखा चल रहा है, आई राइट नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग टू आई कैन एक्चुअली फील इट कि मेरे लेफ्ट नी पे उसका ज्यादा हवा आ रही है, मेरे कंधे पे नहीं आ रही है, या मेरे राइट साइड में तो बिल्कुल ही नहीं आ रही है उसकी हवा, बट ओनली माय लेफ्ट साइड में, वो भी मेरे नी वाले पोर्शन में बहुत ज्यादा हवा आ रही है। अदरवाइज हमें तो लगता ही नहीं, बस पंखा चल रहा है, कमरा कमरा थोड़ा सा ठंडा हो गया बस, बट वी डोंट एक्सपीरियंस एयर। So similarly, when you go out for the morning walk and you experience air, अगर आपको पत्तों की सनसनाहट, पत्ते हिल रहे हैं, दिख रहे हैं, या पत्ते हिल रहे हैं, तो आपको पता चल रहा है कि हवा चल रही है। या आपके कपड़े जब आप चल रहे हो तो आपके कपड़ों में ऐसी कुछ हलचल हो रही है, तो आपको लग रहा है कि आज हवा कितनी तेज चल रही है, तो आप एक्सपीरियंस करते हो। तो अगर जब आप नेचर को एक्सपीरियंस करना शुरू करते हो, तो एयर को एक्सपीरियंस करना शुरू करते हो, ओनली देन यू विल फील दिस, दैट व्हेन यू कम बैक यू विल बी अ डिफरेंट पर्सन, you will be enchanted with the beauty of nature, with the beauty of air, जिस तरह से वो आपको फ्रेशनेस देती है, क्योंकि कमरों में, हमारे घरों में तो स्टेल एयर है ना, इसीलिए पुराने लोग अगर रात को कमरे बंद करके भी सोते थे, एक खिड़की खोल के सोते थे हमेशा, और मैं आज भी खिड़की खोल के सोती हूँ गर्मियों और सर्दियों। एंड द अदर थिंग, सुबह उठते सारे कमरों के दरवाजे खिड़कियां खोलते थे कि घर में कोई फ्रेश एयर है। कोई इंसान बीमार हो तो उस डॉक्टर भी ये बोलता है इसके कमरे में थोड़ी सी फ्रेश एयर आने दो, खिड़की खोल दो, या ऐसी उसका बेड ऐसी जगह कर दो जहां पे उसको कुछ फ्रेश एयर मिल पाए। या दिस फ्रेश एयर इज सो इम्पोर्टेंट फॉर अस, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड मैजिकल एयर। और जब आप मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं और इसको एक्सपीरियंस करते हैं, उसकी छुअन को महसूस करते हो, जब आपके चेहरे को वो छू के जाती है, आपके हाथों को वो छू के जाती है, आपके बालों को सहलाती है, आप इन सब चीजों को महसूस करते हो ना, then you feel that you have experienced magic. अदरवाइज तो हवा चल रही है, हमें तो पता भी नहीं चल रही है, हम तो बस चले जा रहे हैं, कभी सांस ले रहे, पता ही नहीं कि हम सांस ले रहे हैं। जब हम प्राणायाम करते हैं तब हमें पता चलता है, इनहेल एक्सेल, तब पता चल रहा होता है कि हाँ, सांस अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, अदरवाइज कभी महसूस किया। सो दैट इज द मैजिक ऑफ दिस एयर, जो हमें जीवन दान देती है। और आज का चैप्टर इज सो सो ब्यूटीफुल,
एंड मैं आपका आउटलुक ना हवा की तरफ, एयर की तरफ टोटली चेंज होने वाला आज. या प्लीज रीड. If someone had told me a few years back to be grateful for the air that I breathe, I would have thought the person was crazy. It wouldn't have made a bit of sense to me. Why on earth would anyone be grateful for the air they breathe? या बिकॉज टेकन फॉर ग्रांटेड है, तो हवा तो होती है यार, वो तो है हाँ आसपास. किसको थैंक यू बोलना, किस लिए बोलना, वो तो है ही ना. हमारा आंसर ये होता अगर हमें ये प्रैक्टिस करते करते हम इस पड़ाव तक नहीं आए होते. अगर इस चैप्टर के 5वें या 6ठे और 7वें दिन भी किसी ने बोला होता तो आपका जवाब शायद यही होता जो इस बुक में लिखा है. क्या हवा के लिए क्या देनी है ग्रेटिट्यूड, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि ग्रेटिट्यूड होता क्या है और हम किस लेवल तक, किस डेप्थ तक जा सकते हैं विद ग्रेटिट्यूड. या But as my life changed from using gratitude, the things that I took for granted or didn't give a second thought about became an absolute miracle to me. It went from sweating the small stuff of my little world and day-to-day life to opening my eyes and thinking about the bigger picture and wonder of the universe. या As the great scientist Newton said, when I look at the solar system, I see the Earth at the right distance from the sun to receive the proper amount of heat and light. This did not happen by chance. Those words made me think more and more about the bigger picture. It is not an accident that there is a protective atmosphere surrounding us, and that beyond it there is no air or oxygen. या पॉज. अब हम सबने सोलर सिस्टम पढ़ा, हम सबने पढ़ा बचपन में रात दिन कैसे होते हैं, सीजन्स कैसे बदलते हैं, सबने पढ़ा है. बट कभी हमने इस चीज का एहसास किया कि उस यूनिवर्स ने ये जो अर्थ बनाई है उसके आसपास हमारे जीवन दान के लिए, हमारे एग्जिस्टेंस के लिए कितनी प्रोटेक्शन बनाई है. या इफ यू सी कितनी प्रोटेक्टेड लेयर्स हैं. अगर आप ब्रह्मांड में भी जाते हो, इफ यू स्टार्ट लुकिंग एट दी अदर प्लैनेट्स, हम अगर किसी आज जैसे हम कह रहे हैं हम चांद पे पहुंच गए या मार्स पे पहुंच गए, बट सी देयर इज नो ऑक्सीजन देयर. पता नहीं वहां पानी भी है कि नहीं है ना. तो वो जो 5 तत्व हमें जिंदा रहने के लिए चाहिए वो वहां पर नहीं है, सिर्फ हमारे अर्थ पे हैं. और उस अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए कितनी लेयर्स जो है वो परमात्मा ने बनाई हैं. और उसका जो डिस्टेंस है सोलर सिस्टम में, एक प्लैनेट का दूसरे प्लैनेट से कितना सटीकता से बनाया हुआ है. वो मतलब 1 इंच भी इधर उधर नहीं होता है, क्योंकि अगर वो जरा सा हिलता है तो पूरा ब्रह्मांड हिल जाता है, सब कुछ हिल जाता है. इसलिए जब भी आप कहते हैं ना प्लैनेटरी जो मूवमेंट्स होती हैं तो उसका इम्पैक्ट होता है ना. कहते हैं ना आज बहुत ये वाला पाथ क्रॉस कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो आपको कुछ एक्सपीरियंस हो सकता है आज. और कुछ नहीं तो ज्वार भाटा जो समुद्र में लहरें उनका रूप बदल जाता है, बहुत ऊंची उठ जाती हैं. तो ये सब क्यों होता है? बिकॉज अदरवाइज सब कुछ इतना सटीकता से बनाया गया, मतलब इतनी प्रिसीजन से वो चीजें हमारे लिए क्रिएट की हुई है उसने कि कुछ भी कहीं से इधर उधर नहीं है. और हमारे लिए 70% वाटर, बिकॉज पानी हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, 70% वाटर दिया उसने हमारे आसपास. या और लोग जैसे कहते हैं ना पानी खत्म होने वाला है, एयर खत्म होने वाली, कहीं नहीं खत्म होने वाली. ये जो चीजें उसने हमारे लिए बनाई है हमारे सर्वाइवल के लिए वो अबंडेंस में है और निरंतर चली आ रही है और चलती रहेंगी. ये हम लोगों ने ही स्कैर्सिटी क्रिएट की हुई है बिकॉज वी वांट टू मेक मनी आउट ऑफ इट. जैसे पहले पानी के लिए होता था, मतलब पानी के लिए हमने कभी सोचा नहीं था कि हम वाटर बॉटल्स खरीदा करेंगे, कहीं से भी पानी पी लेते थे, हैंड पंप से पी लेते थे, प्याऊ से पी लेते थे, वो मशीन वाला पानी होता था वो भी पी लेते थे. आजकल हम बिस्लरी से कम बात ही नहीं करते हैं. एंड नाउ व्हेन दे से कि एयर पॉल्यूट हो गई है, और अब इसलिए आपको एयर प्यूरिफायर्स लेने चाहिए, आपके घरों में एयर प्यूरिफायर्स होने चाहिए. अरे भाई, एयर हैज दी मैकेनिज्म कि वो अपने आप को प्यूरिफाई कर सकती है, बट उसके साथ हैम्परिंग तो मत करो. जब ट्रीज काट दोगे तो पोल्यूट होगी ना.
आप इकोसिस्टम हिला रहे हो, आप उन ट्रीज को लगे रहने दो और ट्रीज प्लांट कर दो, आपका ऑक्सीजन का या आपका एयर की क्वालिटी अपने आप मेंटेन रहती है, उसने बना रखा है ऐसा सिस्टम। तो हमारे इस जिंदा रहने के लिए कितना कुछ क्रिएट किया हुआ है उसने, एंड इमेजिन दैट, कभी हमने इसके बारे में सोचा ही नहीं है। या प्लीज रीड। It is not an accident that the trees give off oxygen so that our atmosphere is continually replenished. It is not an accident that our solar system is perfectly placed, and that if it were anywhere else in the galaxy, we would most likely to be devastated by cosmic radiation. या तो अगर हम लोग किसी और प्लेनेट पे होते, सूरज के आसपास के किसी प्लेनेट में होते, तो क्या हम जिंदा रह सकते थे? नहीं रह सकते थे। तो हमारी एग्जिस्टेंस के लिए इस प्लेनेट को ही चुना गया, और इस प्लेनेट को इस तरह से बनाया गया कि हमारे लिए वो सस्टेनेबिलिटी के लिए वो इनफ हो, चाहे वो फूड है, चाहे वो वाटर है, चाहे वो सॉरी somebody said Bandri? something. Hotle? Anjali, can you go on Sure. on mute please? I was on mute. Was I not? No, right now you're not. Oh, I'm so sorry, Jagdish. Yeah, I'll no just problem. do. I'll No just do. Yeah. Okay. तो ये सब चीजें हमारे लिए उसने बनाई है, क्योंकि हमारे लिए ही ये प्लेनेट बना है, किसी और प्लेनेट पे ये सब चीजें नहीं है। या प्लीज कंटिन्यू। There are thousands of parameters and ratios that support life on Earth. All of them are on knife edge, and their fine tuning is so critical that a fraction of a difference in any of these parameters and ratio would make life unlivable on planet Earth. या तो अभी जब मैं बात करी थी कि इतना प्रिसीजन से बना हुआ है सब कुछ, एंड इफ यू स्पीक टू एनी साइंटिस्ट या आप किसी भी ज्योग्राफी के प्रोफेसर से बात करोगे या एस्ट्रोलॉजर से भी बात करोगे, तो वो आपको बताएंगे कि जरा सी प्लैनेटरी चेंजेस अगर हो जाएं, या कोई भी चीज जो जिस तरह से प्रिसीजन से बनी हुई है, कुछ भी हिल जाए, तो शायद हमारे लिए ये जगह इस प्लैनेट पे रहना नामुमकिन हो जाए, क्योंकि इतना कुछ हिल जाएगा उससे कि हम लोग शायद जिंदा ही नहीं रह पाएंगे यहाँ पर। हाँ जी। It is difficult to believe any of these things could have happened by accident. It would seem that they are perfectly designed, perfectly placed, perfectly balanced for us. Yeah, that is true. It is perfectly designed only and only for us. जितने भी जीव जंतु, जितने भी living things हैं on this planet, उन सब के लिए यूनिवर्स ने ये बनाया है। Yeah. When the realization hits you that all of these things might not be an accident, and that the balance of every microscopic element surrounding Earth and on Earth is in perfect harmony to support us, you will feel an overwhelming sense of gratitude for life, because all of it has been done to sustain you. Yeah. तो अब जब आप इसका बिगर पिक्चर देखते हैं ना, एंड यू स्टार्ट लुकिंग एट इट कि उस परमात्मा ने कैसे बनाया ये सब, और ये सब सिर्फ इसलिए बनाया है कि हम इस प्लैनेट पे जिंदा रह पाए। उसने हमारे लिए खाने के लिए प्लांट्स उगा दिए, फ्रूट्स उगा दिए, सब कुछ उसने पहले से दे दिया हमें खाने के लिए, पीने के लिए पानी दे दिया, सांस लेने के लिए हवा दे दी, हमारी जिंदगी के लिए जो ऊर्जा चाहिए उसके लिए सन की रोशनी दे दी, जस्ट ऊपर आकाश दे दिया। व्हेन यू स्टार्ट लुकिंग एट ऑल द 5 एलिमेंट्स, किस तरह से यूनिवर्स ने हमारे लिए सब प्रोवाइड किया है, एंड तब आपको ना हर एक चीज के लिए ग्रेटिट्यूड आना शुरू हो जाता है। And when you see a bigger picture, how everything is supporting us. Yeah. The magical air that you breathe is not an accident or a fluke of nature. When you think about the enormousness of what had to take place in the universe for us to have air, and you take a breathing air into your 1 second. air into your body becomes breathtaking in every sense of the word. हाँ, तो जब आप इस चीज का रियलाइजेशन होता है ना आपको कि क्या कुछ उसने बनाया है, इस एयर को कैसे उसने क्रिएट किया है हमारे लिए, ऑक्सीजन को क्रिएट किया है, और कैसे हमको सस्टेन करने के लिए
ट्रीज बनाए हैं कि उसका निरंतर हमें सप्लाई मिलती रहे। तो मतलब अंदर से इतना ग्रेटिट्यूड आता है कि उस यूनिवर्स ने, उस परमात्मा ने, उस गॉड ने क्या चीजें बनाई हैं यार हमारे लिए आसपास हमारे। या We take one breath after another and never give a thought to the fact that there is always air for us to breathe. Yet oxygen is one of the most plentiful element in our body. And as we breathe, it feeds every cell in our body so that we can continue to live. The most precious gift of our life is air, because without it, none of us would last more than a minute, more than few minutes. ओके पॉज। अब आप मुझे ये बताएं, खाने के बिना लोग जो भूख हड़ताल करते हैं रह लेते हैं ना, पानी के बिना भी कुछ कुछ टाइम रहा जा सकता है, क्या बिना एयर के आप रह सकते हैं? बोलो यस और नो। No, ma'am, not possible. Without air, can you sustain? Can you live? So air is something which is available in abundance. But अगर आप अच्छा, जिन लोगों को एस्थमा होता है या जिन लोगों को ब्रीदिंग ट्रबल होती है, आपने उनकी हालत देखी है क्या होती है? मतलब सांस नहीं आती है तो क्या हालत हो जाती है उनकी। जितना मर्जी पैसा हो उनके पास, जितना मर्जी धन्य धान्य से भरपूर हो, जितना मर्जी उनकी फिटनेस हो और अबंडेंस ऑफ एवरीथिंग हो, हैप्पीनेस हो, फैमिली हो, सब कुछ हो, सांस नहीं आ रही हो तो सब बेकार लगता है। उस टाइम पे मुझे मालूम है कि मुझे ना बीच में कुछ एंजाइटी का एक बार अटैक हुआ, पैनिक अटैक हुआ। आई वाज वेरी एंग्शियस अबाउट समथिंग और मुझे सांस नहीं आ रही थी। तो मैं रात को 2-2 बजे बालकनी में खड़े होके लंबी-लंबी सांसें लेने की कोशिश करती थी कि किसी तरह से सांस आए मुझे सांस नहीं आती थी। और फिर मैं आके एसी के आगे आके बैठ जाती थी कि मुझे अंदर चाहिए। मतलब इतनी ज्यादा मुझे प्रॉब्लम होती थी उस टाइम पे। तो आई कैन इमेजिन जब सांस नहीं आ रही हो, जब ऑक्सीजन नहीं मिल रहा हो, तो क्या हालत होती है बॉडी की। और जब आपने कभी हिल्स पे गए हो जहाँ हायर ऑल्टीट्यूड पे जहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, वहां पे सोचो क्या हालत हो जाती है। When I shared it earlier also, मैं जब लेह लद्दाख गई थी, आई थिंक 3-4 साल पहले की बात है, खरदुंगला पास पे जहाँ पे बहुत ऑक्सीजन कम हो जाती है ऊपर जाके, एंड दैट इज द हाईएस्ट मोटरेबल पाथ ऑन द हिल्स। एंड आई वहां पे हम थोड़ी देर के लिए रुके बिकॉज everybody wanted to take a picture is that जहाँ पे खरदुंगला पास लिखा हुआ था और वो कुछ वहां पे फ्लैग्स लगे हुए थे। सो couple of us we wanted to go to the washroom, एंड वॉशरूम के लिए हमें थोड़ा पहाड़ से थोड़ा सा नीचे जाके उन्होंने कुछ बना रखा था, वहां जाना पड़ा। एंड व्हेन वी वर कमिंग बैक, मुझे ऐसे लगा मैं एक कदम नहीं चल सकती, मुझे सांस नहीं आ रही है, आई एम गोइंग टू कोलैप्स। इतनी हालत खराब हो गई थी। और मेरी गाड़ी मेरे सामने है, मतलब मैं 4 कदम लूं तो मैं अपनी गाड़ी को छू सकती हूँ, पर मेरे से वो एक कदम नहीं लिया जा रहा था। और मुझे लग रहा था मैं गई, बस अभी गई, सांस ही नहीं आ रही थी क्योंकि वहां ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जाकर। तो जब आपको इन सब चीजों का एहसास होता है ना, तब पता चलता है कि ऑक्सीजन की कितनी इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। और हमारे बॉडी के एक एक सेल को ऑक्सीजन की जरूरत है, वो ऑक्सीजन से ही जिंदा रहते हैं। जो हमारी बॉडी इतने सारे सेल्स के साथ बनी हुई है, उस हर एक सेल को ऑक्सीजन चाहिए। और अगर हमारी बॉडी में कहीं पर भी बीमारी होती है, डिसईज होती है, इसका मतलब वहां ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं जा रही है। इसीलिए योगा में वो कहते हैं कि जितना आप प्राणायाम करोगे, उतना आपकी बॉडी में ऑक्सीजन उन सेल्स तक पहुंचेगा जहां तक ऑक्सीजन की सप्लाई जानी बंद हो चुकी है, एंड देन यू कैन रिवाइव देम। आप उनको दोबारा से जिंदा कर सकते हो प्राणायाम से। कैसे? बिकॉज ऑक्सीजन अंदर जाएगा आपके। अलोम विलोम करोगे तो ऑक्सीजन आपके हर उस सेल तक पहुंचेगा जहां तक नहीं पहुंच रही है ऑक्सीजन। सो दिस इज सो इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड इट इज अवेलेबल इन प्लेंटी। और इस चीज का एहसास हमें कभी होता ही नहीं है कि हम सांस ले रहे हैं, सांस बाहर जा रही है, कभी भी नहीं करते अनलेस वी हैव प्रॉब्लम। जब हमारे पास उस चीज के लिए स्ट्रगल शुरू होती है, जब हमें तकलीफ होती है, जब ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती है, तब हमें पता चलता है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। या जिन्होंने ऑक्सीजन जिन्होंने कोविड का एक्सपीरियंस किया, दे ऑल नो कितनी बुरी हालत हुई थी सबकी।
हाँ जी. When I first began to use gratitude's magical power, I used it for a lot of personal things that I wanted, and it worked. But it was when I began to be grateful for the real gift in life that I experienced the ultimate power of gratitude. The more gratitude I became for a sunset, a tree, the ocean, the dew on the grass, my life, and the people in it, every material things I have ever dreamed of having poured down upon me. Okay, pause. तो अभी तक हमने अपने रिश्तों के लिए, अपनी चीजों के लिए जो हमें मिली हैं, घर के लिए, गाड़ी के लिए, है ना, पैसे के लिए, रिश्तों के लिए, हेल्थ के लिए, खाने के लिए, तो ये सब चीजें हैं ना, ये सब हमने, इन सब चीजों के लिए हमने ग्रैटिट्यूड देना सीखा है. यस और नो? अभी तक हमने यही कुछ सीखा है ना? Yes, ma'am. Now we are going, taking it into a deeper level. Now we are talking about the 5 elements, जिनकी वजह से हम exist करते हैं, जो शायद हमें नहीं दिखती हैं, but वो हैं, और उनकी वजह से हम हैं. और जब आप इन सब चीजों के लिए ग्रैटिट्यूड देना शुरू कर देते हो, तो आपकी लाइफ में मैजिक होना शुरू करता है इन योर फिजिकल वर्ल्ड. फिजिकल वर्ल्ड मीन्स जो आपको चाहिए वो अपने आप आपकी जिंदगी में आता चला जाता है. जैसे राहुल कह रहा था ना कि जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके लिए तो हो ही रहा है, बाकी चीजें भी होनी शुरू हो गई हैं. दैट इज बिकॉज यू आर गोइंग इन अ डीपर लेवल ऑफ ग्रैटिट्यूड. तो जब आप इन सब चीजों के लिए ग्रैटिट्यूड देना शुरू कर देते हो, ओशन के लिए, अर्थ के लिए, एवरी टाइम यू आर टचिंग ग्राउंड, एवरी टाइम यू आर पुटिंग योर फुट ऑन द ग्राउंड, अर्थ को. पुराने जमाने में लोग करते थे ना, जमीन को प्रणाम करते थे. एंड अर्थ के लिए, वाटर के लिए, ऑक्सीजन के लिए, पेड़ों के लिए, सूरज के लिए, जब आप इन सब चीजों के लिए देना शुरू करते हो ना ग्रैटिट्यूड, और आप हमेशा ग्रैटिट्यूड से भरे रहते हो, चीजें अपने आप जिंदगी में, वो कहते हैं ना, इट विल स्टार्ट पोरिंग डाउन. आपके ऊपर बारिश होनी शुरू हो जाती है उनकी. जैसे कहते हैं ना, इट्स पोरिंग आउटसाइड, बोलते हैं ना, इट्स पोरिंग आउटसाइड. बारिश के लिए बोलते हैं, जैसे डिस्काउंट्स होते थे, कहते हैं इट्स पोरिंग डिस्काउंट्स, है ना. तो ऐसे पोरिंग का मतलब होता है कि अबंडेंस में आ रहा है, अबंडेंस में आपके पास आ रहा है. तो अबंडेंस में वो चीजें आनी शुरू हो जाती हैं आपकी लाइफ में व्हेन यू स्टार्ट गिविंग ग्रैटिट्यूड एट अ डीपर लेवल. हाँ जी. मैम, इस सेम टॉपिक पे हम लोगों ने 3 साल पहले शॉर्ट फिल्म बनाई थी. अच्छा. हम लोग का एक ये भी है, रंग विशेष एंटरटेनमेंट करके चैनल है. तो सेम टॉपिक पे, मतलब हम लोग को आज टाइम मिला तो हम लोग वो 7 मिनट का वो ये चलाएंगे, मतलब अगर हाँ टाइम. हाँ, श्योर श्योर, प्लीज डू दैट. Anything related to the chapter or anything related to the gratitude, sure, you can do that. For the nature and like why we have to give gratitude. Yeah, Same sure. topic पे हमारी रिदम करके एक शॉर्ट फिल्म है. Yeah, sure, please. I know, understand the reason why it happened that way. When we can feel truly grateful for the precious gift of life and nature, like the magical air that we breathe, we have reached one of the deepest possible level of gratitude. And whoever has that depth of gratitude will receive absolute abundance. Yes. जब इतनी डेप्थ से आप ग्रेटिट्यूड देना शुरू कर दोगे हर चीज को, तो अबंडेंस आना ही है. Yeah. Today, stop and think about the glorious air that you breathe. Take 5 deliberate breaths and feel the feeling of the air moving inside your body and feel the joy of breathing it out. Take 5 full breaths and in and out 5 different times today. And after you have taken each set of 5 breaths, say the magical word, thank you for the magical air that I breathe. Okay, pause, pause. अब आप में से बहुत लोग योगा करते होंगे और बहुत लोग प्राणायाम भी करते होंगे. इस तरह से कभी आपने, जब आपने इनहेल और एक्सहेल करते हो, कभी इस तरह से महसूस किया? My question to the people who do yoga. Anybody wants to answer this? No. Yeah. तो अभी भी जब हम प्राणायाम करते हैं तो it is mechanical. Inhale, exhale, inhale, exhale. वही कर रहे होते हैं ना हम. But this is a deeper level at which when you go and every time you will take deeper breath or you just take normal breath and you feel the air filling your body and feel happy about it, that you are able to breathe
एंड उसको जब वापस छोड़ रहे हो, यू फीलिंग हैप्पी अगेन, बिकॉज देयर इज नो स्केर्सिटी, देयर इज नो फियर कि मुझे अगली जब मैं बाहर निकाल रहा हूँ वापस आएगी कि नहीं आएगी, है ना? तो व्हेन यू फील ग्रैटिट्यूड फॉर दैट, इट विल गिव यू अ टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस. तो आज की जो आपको क्या करना है, आपको 5 ब्रेथ लेने हैं एक बार में. You can take a deeper breath if that makes you feel happy. If you want to close your eyes, you can close your eyes, stand outside in the balcony or stand outside near the window, wherever. I would prefer कि आप fresh air लो. Yeah, and then just take 5 breaths. Inhale करके exhale करके 5 बार ऐसे करना है, और उसके बाद आपने बोला thank you for the magical air that I breathe. और ये आपको दिन में 5 बार करना है. So that you experience the magical air, जिसको आज तक आपने experience नहीं किया है, ना आपने उसको gratitude दिया. जब experience नहीं किया तो gratitude कहाँ से देंगे ना? तो experience ही नहीं किया उसको, तो पहले experience करना है. जब आपको experience हो वो joy, वो happiness, wow, and उसके बाद फिर बोलो thank you for the magical air that I breathe. Yeah, मैं तो like I love doing it. I तो open my arms like this, Shahrukh Khan style में, and then I breathe and smile and then I say thank you for the magical air that I breathe. Whatever works for you. आपको जो करके मजा आता है वो करो. या बस करना है कि 5 बार लेना है, उसके बाद थैंक यू बोलना, और दिन में 5 बार करना है. हाँ जी, पढ़े. Thank you for the magical air that I breathe. And be as genuinely, ma'am, last line. Yeah. And be as genuinely grateful as you can for the precious, life-giving air that you breathe. It is best if you can do this magical practice outside, so you can really feel and appreciate the magnificence of fresh air. And if that's not possible, then do it inside. You can close your eyes while taking the breath, or you can do it with your eyes open. You can do it while you are walking, waiting in line, shopping, or anywhere at any time you want. The important thing is to deliberately feel the feeling of the air going in and out of your body. Breathe the way you naturally breathe. Because this magical practice is not about you breathing, but about your gratitude for the air you breathe. If taking a bigger breath help you to feel more gratitude, then do that. If it helps to make a sound or mentally say the magical word, thank you, as you breathe the air out, then do that. If you want, you can also do a variation of this practice in the future by imagining you are, the last line is not visible. 1 second. Thank you. If you want, you can also do a variation of this practice in the future by imagining you are breathing in gratitude and filling yourself up with it with every breath you take. In There's a ancient, lot of disturbance. Can I request everybody else to be on mute, please? Please check yourself if you're on mute, and mute yourself. Yeah. in ancient teachings, it is said that when a person reaches the point of being deeply grateful for the air that they breathe, their gratitude will have reached a new level of power, and they'll have become the true alchemist who can effortlessly turn every part of their life into gold. Yeah. तो पुराने जमाने में ये कहते थे कि जो एयर के लिए, I would say 5 elements के लिए, I will not restrict it to air, but here this book is talking about air. तो आप जब एयर के लिए gratitude देते हो, इतने डीपर लेवल पे जाके जब आप ग्रेटफुल हो जाते हो, तो you become like an alchemist. Alchemist कौन होता है? जिस चीज को छूता है उसको गोल्ड बना देता है ना? मैग्ना क्या बोलते हैं उसको, कौन सा टच बोलते हैं? तो वो वाला उसके पास टच होता है कि वो जिस चीज को छूता है वो गोल्ड बन जाती है. गोल्ड मीन्स it brings abundance, it brings happiness, it brings joy. तो आप हाँ, जब आप वो चीज करना शुरू कर देते हो कि आप एयर जो ब्रीथ कर रहे हो उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड दे रहे हो, और डेलिबरेटली दिन में कितनी बार करते रहते हो, एंड यू आर डूइंग आल्सो मैजिक स्टेप्स. जस्ट इमेजिन दैट, मैजिक फुट स्टेप्स कर रहे हो और ये कर रहे हो. सोचो कितना मैजिक ला सकते हो अपनी लाइफ में, क्योंकि ये 2 चीजें तो हर टाइम ही कर रहे हैं ना. हम चल भी रहे हैं और हम सांस भी ले रहे हैं. तो आप जिस चीज को छूओगे, जो चीज बोलोगे, वो आपकी लाइफ में होती चली जाएगी.
So that is the kind of power it has. So it's a very powerful chapter. Yeah, let's look at the practice now. Magic practice number 23. The magical air that you breathe. Number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you. And feel as grateful for that blessing as you can. Number 2. 5 times today, stop and think about the glorious air that you breathe. Take 5 deliberate breaths and feel the feeling of the air moving inside your body and feel the joy of the breathing it out. Number 3. After you have taken the 5 breaths, say the magical words, thank you for the magical air that I breathe. Be as grateful as you can for the precious life-giving air that you breathe. And number 4, just before you go to sleep tonight, hold a magic rock in your hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Thank you very much, ma'am. Thank you so much, Rahul. So आज की प्रैक्टिस क्या है? नंबर 1 तो आपको पता ही है क्या करना है. आपको अपने 10 blessings लिखनी है and you have to reread them and reason लिखना है क्यों आप grateful हो. और जब reread करोगे तो उसको feel करते हुए आपको 3 बार thank you बोलना है. तो आज की प्रैक्टिस क्या है कि आपको 5 breaths लेने हैं और उसको महसूस करते हुए 5 breath लेने के बाद आपको बोलना है थैंक यू फॉर द मैजिकल एयर दैट आई ब्रीथ. और आपको ये वाली एक्सरसाइज दिन में 5 बार करनी है. आप चाहो तो एक ही बार में 5 बार कर लो, आप चाहो तो यू कैन स्प्रेड इट ओवर द डे, पूरे दिन में 5 बार कर लो. एक बार अभी कर लिया, एक बार दोपहर को कर लिया, एक बार थोड़ी देर बाद कर लिया. तो जितनी बार भी आप ध्यान आए आपको आप कर सकते हो. और 5 टाइम तो जो है वो मिनिमम है. आप चाहो तो पूरा दिन भी कर सकते हो. जितनी बार याद आ जाए उतनी बार कर लो. But 5 times is the minimum as per the book, which is required to keep the momentum of your gratitude so that you are able to attract what you want in your life. Yeah. So that is the practice for the day. So thank you once again, Rahul. And if you want, you can share that clipping. In the meantime, लिंक भेजा मैम. आप जस्ट क्लिक कर लेना, वो फिल्म चालू हो जाएगी. chat पे भेजा? हाँ, चैट पे भेजा. Is it visible? Not yet. I think आपको ये डेस्कटॉप शेयर करना पड़ेगा. शेयर करना पड़ेगा ना. One second. Is it visible now? Yes, ma'am. Is it okay? The size of this thing? I think ये ओपन करेंगे तो अच्छा रहेगा. हाँ, फुल स्क्रीन. इसका आवाज आएगा ना? आना चाहिए. So you can explain what is happening. So there's a guy who's going for a bike ride. Selfie time. I think आवाज नहीं आ रही है. कुछ तो आनी तो आवाज नहीं आ रही. आनी तो चाहिए. अभी आ रही है? नहीं. बढ़ाना पड़ेगा आपको शायद मैम, तो आएगी. हाँ, आ रही है क्या? आ रही है, एकदम हल्के से आ रही है.
वॉइस नहीं आ रही। एकदम हल्का आ रहा है मैम। हम लोग खुद देख लेंगे, आप लिंक चैट उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिएगा। और ये फिल्म मराठी में है, मतलब लोकल महाराष्ट्रियन लैंग्वेज, बट नीचे हम लोगों ने सबटाइटल भी डाले हैं, तो आप समझ जाओगे। ये अभी लड़का बोल रहा है कि मैं आज भाग नहीं सकता है क्योंकि मेरा यूट्यूब नहीं काम कर रहा है, मतलब जो मेरा हेडसेट है ना वो काम नहीं कर रहा है। और ये अंकल दादाजी उसको बोलेंगे कि मैं आज तुम्हें दिखा दो, चलो मेरे साथ। तो बोलता है कि मैं घर पे जाने वाला हूँ, मेरा काम नहीं कर रहा है मोबाइल। नाउ ही इज टेकिंग हिम फॉर द नेचर राइड। Wow, so beautiful. मैम ये सब हम लोगों ने ये जो कैमरे लगाए थे वहां पे, ये 10 दिन हम लोगों ने वहां पे कैमरे लगाए थे, ये इसमें गार्डन में। और ये सब हम लोगों ने कहाँ से लिया नहीं, हम लोगों ने खुद ने शूट किया, वो हमारे डीओपी ने। मुझे दर्शन जी याद आ रहे हैं इस अंकल जी को देख के। और फिल्म का टाइटल भी है रिदम, द नेचर हैज इट्स ओन रिदम। Very nice, very nice. Wow, very nice, very nice. बहुत बढ़िया. Very nice, and it was so appropriate for the chapter today. Very appropriate for the chapter. Yes, yes, Yeah, yes. amazing. जो Amazing जो message. जो कुछ मैंने बोला वो सब उसमें you know, it was actually depicted in this. It's really very beautiful. मतलब जैसे, see, now tell me, when this guy went earlier for the run,
तब उसको कुछ एक्सपीरियंस होता, या जब नेक्स्ट टाइम जब उसने नेचर को महसूस करा, will he be the same person who went for the walk when he comes back? इट्स डिफरेंट। जो 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 अपने इसका जो ये सेशन का जो टाइटल था उससे परफेक्ट मैच था ये। हाँ, so I'm asking a question to everybody. जब हम बुक में हमने फर्स्ट लाइन जो पढ़ी थी कि when you go out in the morning for a walk, you will be not the same person, you will be, you know, you'll be a different person, enchanted and whatever was written there. जो इंसान, जो ये लड़का जो रन के लिए पहले गया था with the headphones, वो वाला लड़का वापस आता तो वो क्या different person होता? Say yes or no? No. Yeah. अब वो different है. हाँ, अभी जब वो गया and when he experienced everything, did you see he also did that जो मैं कह रही थी कि ऐसे करके Yeah. he actually felt the air like that, and he was enjoying everything. वो birds को you know chirping enjoy कर रहा था, और you know आसपास सब कुछ देखता हुआ चल रहा था. So the person who came back was an enchanted person. He was not the same person, right? So this was so appropriate. Thank you so much, Rahul, for sharing this. Thank you. Amazing. Yeah. Beautiful, Rahul, ऐसे ही करते रहा Thank you करो. so much. Thank you. कोई और भी It हो was तो such a देना. wonderful video, yeah. Yeah. Really. And it was so appropriate for the session today. नहीं, कोई और भी हो तो भी दिखाना. बहुत मजा आया. हाँ, मैं बहुत मजा आया really. वो जो रंग विशेष एंटरटेनमेंट देखोगे ना, तो वहां पे हम लोगों ने मतलब अब तक 10 से 12 फिल्म बनाई है. उसमें आप ना एक है डोनेशन बॉक्स करके, जैसा मैम ने लास्ट सेशन में शेयर किया था ना जगत में आपने, कि आप वो 10 रुपीज हर दिन आप देना चाहते हो, तो वो ये एक अलग मैसेज वो मैंने खुद ने राइट किया, डायरेक्ट किया है. वो एक डोनेशन बॉक्स में, उसका भी भेज दूंगा लिंक. ये रंग विशेष वो WhatsApp पे भेजना, WhatsApp पे भेजना. I'll do that. Yeah. Okay, so anybody wants to say anything about the session, today's session, which is so beautiful. In one word, magical session today. Yeah. And उसमें end में जो है वो special magic का तड़का by Rahul. Spices जो उसने add करे ना राहुल ने, really amazing, good. बहुत अच्छा लगा, मजा आ गया. Yeah, thank you Rahul once again. Okay, so Colonel Somnath had written in the WhatsApp group that he wants to share something. Is he there on the in the session? So would you like to share what would you like to share today? Namaskar, madam. Can I be audible? Yeah, you are audible. Yeah, please go ahead. Yesterday, when I was trying to understand that we have been talking so much about the visualization. In fact, theory is very good to know, but how to practice it? So I was trying to explore it, and so I found very beautiful ideas. One is that, how does it work? This technique of visualization is innate in the human body, but we do not know how to use it so far. It is by this teaching today that now I felt the necessity to explore it, how to use it. And I find there are many benefits when you do it. First of all, it says that it activates your creative subconscious mind. By doing so, it opens up your ideas, new ideas. It is out of the box ideas that you start generating new ideas. How to go about this project? Saying is something, but doing it, as you say, when we come to practice now. When I'm doing practice, I want to understand how does it work. I find it. First thing is that it activates your creative sub-mind conscious. Number one. That means you start thinking is something good. Number two is that, like a project, when you start some project, you want to know, what do I need all that thing to do it? Resources. What are tools, techniques? So it makes your brain programming like that, कि मुझे ये resource चाहिए इसके लिए, मुझे क्या करना है इसके लिए. तो action plan जो है, जब तक हम वो नहीं करेंगे, actual practice नहीं हो पाएगी. So number two. Number three is self-motivation. That means you are self-motivated to do something harder than what you normally do. It is not abnormal, it is abnormal activity that you want to achieve your goal rapidly. So
accelerate the rate of this thing. And then it gives you confidence that you are doing, and you start feeling successful about it. It relieves your anxiety. That means you become anxious कि मुझे करना है, कैसे करना है. But when you start doing this and this helps you, it relieves your anxiety and helps you rapidly accelerate your goal. So ये factor जो है, benefit जो है, when you do real practice is that you are programming it, you are trying to find new ideas to generate it, to achieve your goal. You are finding resources to how to go about it. And law of attraction, that when you are on that wavelength, it happens sometime. It happens, you just look back to your own life, walk of life, your activity in life, wherever you are excelled, you achieve your goal, you will find law of attraction has worked very well. That means something has happened with you. Somebody has come to your home, somebody has met you to give you advice, somebody is guiding you, somebody is supporting you. So law of attraction works. So what I feel very excited about is work. How does it work? Visualization, I've been talking for the last 20 days or so. मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि visualization जो कसम होता क्या है? How does it operate on visualization? How does it accelerate your achievement of the goal? So I was very happy to go through that. I wanted to share that because now time has come to practice it. When you practice it, you must realize it. इससे होता क्या? इससे फायदा कैसे होता है? तो ये चीजें हैं. फिर उसके बाद सेकंड चीज की टेक्निक जो आपने पहले बताया कि बहुत टेक्निक्स हैं इसकी जो वेरी सिंपल वे. सम पीपल कांट फोकस ऑन द थिंग, सो दे हैव ए विजन बोर्ड. जैसे आपने मॉनेटरी का बात किया, करेंसी का बात किया, विजन बोर्ड किया कि अगर आपको एक मकान की जरूरत है तो आप उसके मकान को एक, या आपके बॉडी की हेल्थ की जरूरत है तो यू स्टार्ट बिल्डिंग, यू वांट टू. तो विजन बोर्ड है, इंडेक्स कार्ड है, वेरी टेक्निक्स हैं. बट व्हाट आई एंजॉयड वाज कि हाउ डज इट वर्क. सो आई एम ग्लैड टू सी it helps you generate new ideas, out of the box ideas. It helps you to recognize the resources which you want. It helps you to allow direction. It builds your confidence. It relieves you your anxiety. So all these things that I was very happy to understand it. Thank you very much for giving me time for that. And I'm glad that it is helping me quite a bit. Now the time has come when you want to practice it, and I wanted to know that. That's what I want to share. Thank you very much, ma'am. Thank you so much, Colonel Saab. And I would just request if you would, if you can see the secret movie again today. Yes. Yeah, that will help you to understand it even better. Yeah. So if you see that movie once again today, it's just a 90 minutes movie. And if you see that, it will actually help you in understanding. I will do that. Thank you. I will do that. Even better. Yeah. Thank you so much for sharing that. Thank you. Okay. Anybody else wants to share anything? Good morning. Good morning. That reminds me, that reminds me of Vidya Balan and Munna Bhai. Good morning, Mumbai. She used to say, no? मैंने अपनी एक्सरसाइज कर ली. I feel that magical air. Very good. And keep doing it. 5 बार करना है दिन में. Vision is breath of fresh air. Yes, मैंने 4 बार तो कर ली because I'm sitting in a terrace. So मैंने सन भी देखा, वो सब कुछ मैं देख रहे थे. I feel so happy, ma'am. And thank you so much. And दर्शन जी बड़ीज जो बीच-बीच में पुशअप करके जा रहे हैं. तो बडीज का तो काम ही यही होता है. बडीज का काम ही यही होता है. Yes, and नेचर का इस अमेजिंग वीडियो वो देख के मेरे को अभी मेरे बेलगाम का जो हम लोग वॉक करने जाते हैं शाम को, आई रिमेम्बर दैट कि आज जो राहुल जी ने वीडियो डाला मुझे वही एक फ्लैशबैक याद आ गया जो हम लोग लास्ट वीक में वैक्सीन डेपो करके एक प्लेस है. सो वहां पे फुल ऑन नेचर का है एंड इतनी चिड़िया की आवाज है. सब लोग वो हेडफोन डाल के जा रहे थे. सो आई नेवर पुट हेडफोन. सो मैंने 2-3 लेडीज को साथ में बोला कि डोंट पुट हेडफोन, पागल हो गए क्या, नेचर का एंजॉय करो. ठीक है, तू पागल हो गई क्या? मेरी मैडम सेड यू डू इट, देन यू कैन टेल मी व्हाट इज हैपन. तो वो फ्लैशबैक मुझे अभी याद आ रहा है. क्या आज मैं किसी को बोल के भी आज इन लोग कर रहे थे. मैंने वीडियो उतारा था, अच्छा लगता था, कुछ नया. पर थैंक यू फॉर राहुल जी, बहुत अच्छा वीडियो उतारा उन्होंने और एक अच्छा फ्लैशबैक मेरे को याद करवा दिया पहले का. Good. And thank you ma'am also. Beautiful magic air मैंने enjoy किया. Good. और आज सबने किसी ना किसी ट्री को जाके भी हग करना है एंड उसको थैंक यू बोलना है for all the other trees
को रिप्रेजेंट करते हुए जो हमारे लिए इतना सारा ऑक्सीजन हमें रोज देते हैं. ठीक है? So Yes. everybody has to do that today. Yes, yes, yes. Thank you so much, ma'am. Thank You're you. welcome. You're welcome. Okay. Anybody else wants to say anything? Okay. तो आजकल तो होली की तैयारियां चल रही हैं नॉर्थ इंडिया में. सबके घर में गुजिया वुजिया बन रहे हैं, गुजिया आ रहे Happy हैं. Holi. Happy Holi. आज Happy Holi. या और कल सब लोग खेलेंगे होली. तो आप लोग भी नेचर के साथ होली खेलें आज. And pay lots of gratitude to the nature around you. Yes. Yeah. Yes. मैम कल सेशन होगा होली का? बिल्कुल होगा. सेशन तो रोज होता है. अब जब तक बुक खत्म नहीं होती तब तक रोज होएगा सेशन. या Okay, so मैम कल होली के ऊपर कुछ बताना. अच्छा. Law of attraction for Holi. Holi. Okay, so let's do the gratitude prayer. Yes. And please do write your takeaways in the group so that people who have not attended the session, they also know what all was available in the session today, right? Okay. So fold your hands, close your eyes, and say thank you to whosoever you want to say thank you. Okay, तो thank you everybody and आज का संडे enjoy करो और खूब सारी एयर अपने अंदर भरते हुए thank you बोलो एयर को. Yes. And take as many deep breaths as you can, which will also energize your body and your mind and will take you to a deeper level of gratitude. Okay, so thank you everybody and I will see you tomorrow at 6:20. Bye bye. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye. Thank you very much to everyone. Thank you.